Aishwarya Solanki, on behalf of the entire team Vikasa, would want to present a very warm welcome to our dear audience and our speaker for the session, CA Dhara Gandhi ma'am. As we all know, during this pandemic, a lot of changes has occurred with regarding to the tax laws and the norms and the dates of filing, and also a lot of exemptions and different norms have come up. So let us today know how many changes have occurred in filing the income tax for the assessment year 2021. Before we start the session, I would request Ms. Taruna Vaishnav to give a brief introduction of our speaker. Taruna, you're not audible. Please turn on your mic. Yeah. Good Yeah. afternoon, everyone. Firstly, I would like to thank Vikasa for giving me this opportunity to present introduction. Continuing forward, C. Dhara Gandhi, ma'am, is a member of the prestigious Institute of Chartered Accountants of India, also duly possessing a bachelor's degree in commerce. She is a practicing chartered accountant, spearheading her enterprises into direct and indirect taxation. She has gained work experience with one of the largest stock exchange, BSE Limited, Mumbai, as the listing reviewer, reviewing various cases of listing of the IPO, FPOs, and direct listing, etc. She has also worked and gained experiences with J. Kala and Associate Chartered Accountants, Mumbai, a reputed organization as a taxation manager dealing with the direct tax and indirect tax compliances, etc. Apart from conducting lectures on the subject of GST implementation and the guidance in various seminars, cooperative banks, etc., she has also provided various lectures at ICAI, Mumbai branch and Nagpur branch on the subjects of income tax and GST. She is a visiting faculty at various institutions providing lectures for financial service and capital market subject to CA finance students. She has recently provided successful lectures through webinar on practical use of Tally ERP9 for GST returns and audit organized by Jain College Mumbai and Indian Accounting Association with more than 2,000 plus attendees. She has also provided various lectures through webinars on Tally Essentials for income tax, audit and GST compliances for senior chartered accountants organized by Nagpur branch of ICAI along with Bhuj, Bharuch, Satara and Pimpri Chinchwad branches. She is always keen in learning about the latest updates across the professions globally with a major thrust on the means and applications of upgrading technology in the professional services field. Now I would request C. Dhara Gandhi ma'am to take forward the session. Thank you, Ms. Taruna. Am I clearly audible? Yes, ma'am. And my screen is properly visible? Yes. Okay. So, should we move on? Yeah. Okay. So, good afternoon, everyone. Today, we are going to discuss the major changes which has occurred in income tax returns for assessment year 2020-21. And as you are aware, the due date for filing return is 30th November and due date for uploading tax audit is 31st October, right? So almost utilities by income tax, almost return utilities by income tax are out. But as of now, ITR 1 to 4 utilities are out and recently ITR 5 Excel utilities out, yet 6, 7 utilities are yet to come. So I'll try to focus on major changes in income tax return for this year. Last year, there were so many changes in income tax return, which is inculcated in current year's return also. Apart from that, they have added much more changes in this year returns also. Okay. We'll look into some important amendments which is applicable for this financial year, that is 1920, that is assessment year 2020-21. I'll tell you about what ITR to be selected. ITR 1 कब आएगा, ITR 2 कब आएगा, ITR 3 कब आएगा, because wrong selection of ITR may cause to defective notice and which is very tedious job to then rectify. We'll talk about slabs, जो अभी slabs change हुए हैं assessment year 2021 के लिए. I'll provide you with consolidated chart for ITR selection
along with condition, so you will be able to know कि कौन सा ITR कब select करना है, because the terms and conditions for that has been changed this year. Okay. Apart from this, tax audit कब applicable होगा, इसमें भी major change है, तो वो change भी आपसे discuss करेंगे. So I've tried to inculcate almost every possible thing जो बहुत important है ये साल के return के लिए, which अगर नहीं किया तो which may cause for scrutiny or defective notice, we will try to avoid that. Okay, so we will start. Ma'am, I'm sorry to interrupt, but there's a ma'am, I wanted to ask, would you want to take the questions in between or at the end of the session? No, at the end of the session would go. Okay, ma'am, works. Thank you. Okay, thank you. So filing of income tax return 2021, a major change कि अब रिटर्न पैन और आधार के थ्रू भी अपलोड हो सकते हैं. ITR 1 to ITR 4 can be filed either by using PAN or by Aadhaar of individuals. Mandatory filing exceeds specific limits of deposits, foreign travel and electricity expenses. अगर exemption limit के नीचे था तो return filing was not mandatory, but अभी 3 conditions ऐसी आई है जिसमें अगर वो conditions आप fulfill करते हो जो मैंडेटरी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है. वो 3 कंडीशंस है, डिपॉजिट की, फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. डिटेल में वो प्रोविजन क्या है, आई लेट यू नो इन फर्दर स्लाइड. ठीक है. इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एग्जेम्पशंस मिले हैं. यू माइट बी नोइंग, यू माइट बी अवेयर ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, अगर असेसमेंट ईयर 2021 का इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो 31 मार्च 2020 तक यू कैन डू. बट ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया था. तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 31 जुलाई 2020 तक का टाइमिंग दिया गया था. तो अगर विद इन 31 जुलाई 2020 आपने चैप्टर 6A के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट इन दिस ईयर्स रिटर्न. तो उसके लिए अलग से डिस्क्लोजर दिखाया गया. अभी तक यूटिलिटी कौन सा रिलीज हुआ है, 1 to 4 कंप्लीटली रिलीज हो गया है, एक्सेल प्लस जावा यूटिलिटी, और ITR 5 का रिसेंटली एक्सेल यूटिलिटी रिलीज हुआ है. ओके, नाउ व्हाट आर द ड्यू डेट्स? 30th November for individual firms, partners not liable for audit. Important, 31st October submission of tax audit report. आपको 31st अक्टूबर तक तो बुक्स फाइनल कर ही देनी पड़ेंगी जो ऑडिट में है. तो दे आर सेइंग कि आप ऑडिट रिपोर्ट 31st अक्टूबर तक फाइल कर दो, आप उसके रिटर्न्स बाद में 30 नवंबर तक फाइल करोगे तो चलेगा, which is practically not sensible. as if हमारा ऑडिट रिपोर्ट फाइल हो ही रहा है तो हमको रिटर्न का तो पूरा डेटा मिल ही गया है, तो हम लोग क्यों 30 नवंबर तक एक्सटेंड करें. तो ऑडिट वाले केसेस का ड्यू डेट है 31st अक्टूबर 2020 एंड नॉन ऑडिट केस का ड्यू डेट है 30th नवंबर 2020, इंक्लूडिंग जो 92E वाले केसेस है वो भी 30 नवंबर का ड्यू डेट है. सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ITR 5 में. यूजुअली लोग क्या करते हैं, ITR अपलोड कर देते हैं टाइम पे, ई वेरिफिकेशन पेंडिंग, आधार OTP नहीं आ रहा है, EVCs नहीं जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज, बैंगलोर नहीं भेज पाए हम लोग विद इन 120 days. सो व्हाट? सो नाउ गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट. वो लोग ने क्या किया है, ITR 5 का नया फॉर्मेट लेके आया. अगर आपने ITR ई वेरीफाई कर लिया है, या तो बैंगलोर पहुंच गया है या तो आपने EVC से जनरेट करके उसका ई वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, तो दैट एक्नॉलेजमेंट विल बी नोन एज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आपको पूरे हेड्स की इनकम जैसे अपन को नॉर्मल ITR 5 दिखता था वैसा दिखेगा. बट अगर अनवेरिफाइड एक्नॉलेजमेंट है, अभी तक आपने ई वेरीफाई रिटर्न नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म दिखेगा. उसमें ना ही आपको इनकम दिखेगा ना ही कुछ दिखेगा, किसका रिटर्न है और वेरिफिकेशन कराओ उसके बाद ही आप डाउनलोड कर पाओगे. तो पहले आपको दिखता था ना ड्राफ्ट या तो अपलोडेड
ई वेरिफिकेशन पेंडिंग, आपको वाटरमार्क दिखता रहा पीछे, अभी वो सिस्टम ही हटा दिया, अब इनकम ही नहीं दिखेगा। तो आप अपलोड करके सीधा बैंक में पहले सबमिट कर देते थे या कहीं भी कोई भी पर्पस के लिए सबमिट कर देते थे, अभी ये पॉसिबल नहीं है। आई विल शो यू। दिस इज द ITR 5 which is still unverified. तो इसका नाम ही वेरिफिकेशन फॉर्म दे दिया है, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। यू विल बी एबल टू सी इन दिस इमेज। इसमें सिर्फ आपका नाम, पैन, कौन सा ITR आपने अपलोड किया है वो दिखेगा, उसका स्पेसिफिक बारकोड दिखेगा, बट यू वोंट बी एबल टू सी एनी इनकम, कितना डिडक्शन, कुछ नहीं। सीधा प्लेन वेरिफिकेशन फॉर्म है। जब तक आप ये ई वेरिफिकेशन नहीं कराओगे या तो बैंगलोर नहीं भेजोगे, आपको कोई इनकम या कोई डिटेल्स इसमें दिखेगी ही नहीं। एक बार अगर आपने बैंगलोर भेज दिया तो उसको अपडेट होने में विद इन 15 डेज वो अपडेट हो गया, आप आपका नॉर्मल ITR 5 डाउनलोड कर पाओगे। अब जो ई वेरीफाइड ITR है वो ऐसा दिखेगा। इसमें आपको पूरा इनकम, जैसे हम लोग को नॉर्मल ITR 5 दिखते थे वैसे ITR 5 दिखेंगे। normal name, PAN, address, every income details, everything. So this is the verified form which is known as Indian Income Tax Return Acknowledgement. Unless you verify, तो आपको verification form दिखेगा। Verification होने के बाद you will be able to see this form. This is normal ITR which is generated after e-verification. Okay. So this is the major change. अगर verify नहीं करवाया है तो आपको कोई डिटेल मिलेगा नहीं ITR 5 में। ओके अभी फॉर्म्स चेंज क्यों हुए हैं, व्हाट इज द रीजन बार बार गवर्नमेंट को फॉर्म्स चेंज करने पड़ते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत मेजर चेंजेस आया था असेसमेंट ईयर 1920 में, दिस ईयर 2021 में भी काफी चेंजेस आए, तो बार बार गवर्नमेंट को फॉर्म्स क्यों चेंज करने पड़ते हैं। एक तो फाइनेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट आया है वो उनको फॉर्म में इनकलकेट करना पड़ता है। they need additional disclosures. Now I'll tell you, they have tried to connect every possible way, for inter disclosures. Example, income tax and GST are connected. 26AS traces is connected. They have recently connected with SEBI का website. तो जो लिस्टेड कंपनीज है वो सेबी में रिटर्न फाइल करती है, वो भी इनकम टैक्स के साथ कनेक्ट हो गया। सब में इंटर कनेक्शन है, सबका इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मैच होता है। अगर कहीं भी आपका मिसमैच आया देन यू मे गेट स्क्रूटिनी नोटिस। नाउ स्क्रूटिनी ऐसा बोलते हैं कि टेक्निकल बहुत था पहले, अभी नहीं रहा है, बट थिंग इज अभी आ गया है फेसलेस स्क्रूटिनी, मैंडेटरी फेसलेस स्क्रूटिनी, सो यू कैन डू एनीथिंग। अगर कहीं पे भी आपका मिसमैच आया देन यू आर स्टक। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज द बेस। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से आपका GST मैच होगा, ट्रेसेस का वेबसाइट मैच होगा, सेबीज का वेबसाइट मैच होगा, डिफरेंट वेबसाइट मैच होगा। अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न रॉन्ग फाइल किया तो यू मे गेट स्क्रूटिनी नोटिस। तो कौन सा ITR सिलेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और कौन सा डिस्क्लोजर कहाँ पे देना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो नहीं हुआ इनकम टैक्स रिटर्न में तो यू मे 110% ईदर गेट डिफेक्टिव नोटिस और यू मे गेट स्क्रूटिनी नोटिस। तो इतने चेंजेस क्यों ला रहे हैं, इतने डिस्क्लोजर्स क्यों बढ़ा रहे हैं? टू अनकवर अंडर रिपोर्टिंग और रॉन्ग रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जितना बढ़ाएंगे उतना इंटरकनेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, now these are the slabs for this current financial year, that is assessment year 2021। इंडिविजुअल का वही 2.5 लाख, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 to 10 20% एंड above 10 30%। सीनियर सिटीजन विच आर 60 years old उसका स्लैब 3 लाख का है, और सुपर सीनियर सिटीजन 80 years उसका 5 लाख का स्लैब है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10,000 तक का 10%, 10,000 से 20 तक 20 and 30%। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज 87A का रिबेट। लास्ट ईयर तक 87A का रिबेट बहुत कम था, इस बार 87A का रिबेट बढ़ा दिया है। मतलब अगर 80 की इनकम 5 लाख तक है ना तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा,
बट अगर इनकम 5 लाख से ऊपर चली गई तो नॉर्मल 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। तो अप टू 5 लाख रिबेट दिया है 12,500 तक का। 5 लाख के ऊपर गया तो ही आपको इनकम में टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। तो ये ईयर का वो मेजर चेंज है। आपको देखना पड़ेगा आपके क्लाइंट कौन से 5 लाख के ऊपर जा रहे हैं और कौन से नहीं जा रहे। ठीक है, अभी फ्लैट रेट फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटीज, एओपीबीआई सबको 30%, डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनीज 40%, और इस पे एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस 4% एक्स्ट्रा। अब डोमेस्टिक कंपनीज में भी कुछ चेंज आए थे एज पर सेक्शन 115 BAA, BAB एंड 115 BA, 22, 15 एंड 25%। इसके स्पेसिफिक कंडीशंस है। अगर आप कोई नया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज करते हो और ये स्पेसिफिक ओपन करते हो और ये स्पेसिफिक कंडीशंस जो सेक्शन में दिए हैं वो फुलफिल करते हो, इफ यू आर डोमेस्टिक कंपनी, तो आपको लोअर टैक्स रेट लगेगा, 30% नहीं लगेगा। ठीक है, एंड टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 अगर लेस देन 400 करोड़ है तो आपको 25% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सरचार्ज कितना लगेगा? 50 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ इज 10%, 1 to 2 crore 15% नॉर्मल लोग के लिए, 2 to 5 crore 25% एंड 5 crore के above 37%. So this is the chart. I think this PPT would be shared on the WIRC website. So you will be readily get this slab and everything of the PPT. Okay. Apart from this, domestic company का surcharge है, उसके eligibility के हिसाब से domestic company up to 50 lakh 10%, 50 lakh to 1 crore is 10%, 1 crore to 10 crore भी 10% है। सेक्शन वाइज आप देख सकते हो। और फॉरेन कंपनी का 1 to 10 crore 2% एंड 10 crore के ऊपर 5%। अब ITR सिलेक्शन रूल्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज रियली इंपॉर्टेंट। हमेशा कंफ्यूजन होता है कौन सा ITR सिलेक्ट करना, राइट? ITR 5, 6, 7 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज पता है कि 6 कंपनी के लिए ही यूज होता है, 7 ट्रस्ट के लिए ही यूज होता है। कंफ्यूजन कहाँ आता है? ITR 1 एंड ITR 2 के बीच में, और प्रिजम्पटिव वाला ITR 4 एंड ITR 3 के बीच में। तो दिस इज द मेजर कंफ्यूजन। तो यहाँ पे ये टेबल में हर एक कंडीशन लिखी हुई है कि कब कौन सा ITR सिलेक्ट करना है, रेसिडेंस को कौन सा ITR सिलेक्ट करना है, नॉन रेसिडेंस को कौन सा ITR सिलेक्ट करना है। अगर हाउस प्रॉपर्टी एक ही है तो ठीक है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो कौन सा ITR सिलेक्ट करना है। प्रिजम्पटिव में ITR 4 कब सिलेक्ट करना है, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट 44 AD 44 ADA के नॉर्म्स क्या है, उसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस के हेड से इनकम आ रहे तो हमको कौन सा ITR सिलेक्ट करना है। तो दिस सिलेक्शन कंडीशन हम लोग प्रेजेंटेशन के एंड में लेंगे, तब तक हम लोग ये ITR 1, 2, 3, 4, 5 सब डिस्कस कर चुके होंगे। Am I clearly audible, Aishwarya? Yes, ma'am. I think my screen is stuck. No, ma'am. I can see the screen. You can see the screen? Okay. Yeah. So first, we'll see who is eligible to use ITR 1. ITR 1 फॉर्म किसको एप्लीकेबल होता है? फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम पेंशन है, तो ITR 1 आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो यू कांट सिलेक्ट ITR 1। अदर सोर्सेस से इनकम चलेगा, बट अगर आप सेक्शन 57 में एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो तो ITR 1 नहीं चलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो अप टू 5,000 है तो ITR 1 फाइल कर सकते हो, वरना ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो।
अगर आपका सैलरी इनकम ही है, बाकी कोई इनकम ही नहीं है, बट वो भी 50 लाख से ऊपर जा रहा है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। सैलरी पीपल विथ 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज इनकम चलेगा, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 चलेगा। अब ITR 1 कब यूज नहीं कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसमें से कहीं आपका असेसी फंसता है नॉर्मल कंडीशन में से, और अगर आपने ITR 1 यूज कर लिया तो आपको डिफेक्टिव नोटिस आने के 100% चांसेस है। फर्स्ट थिंग, ये ITR 1 कब यूज नहीं कर सकते, इफ असेसी इज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। अब आप मुझे बोलोगे मैम डायरेक्टर अभी वो कहाँ से पता चलेगा, हमने तो ITR 1 फाइल कर दिया, कोई डायरेक्टर की डिटेल नहीं डाली है, बट ROC के रिटर्न फाइल होते हैं, ROC में वो डायरेक्टर का पैन डिन नंबर सब जाता है, वहां से ट्रेस हो जाएगा। यू मे गेट अ शो कॉज नोटिस फॉर रॉन्ग रिपोर्टिंग। तो ऐसा नहीं करना, आपके क्लाइंट से पहले एक FAQ ले लेना, उससे एक चेक पॉइंट या एक लिस्ट बना लेना, उसको पूछ लेना कि अगर आप कहीं डायरेक्टर हो तो आप स्पेसिफाई करो। सेकंड, अगर कोई असेसी के पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, ये दोनों लास्ट ईयर के रिटर्न में भी कंडीशन थी, अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर्स है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने होल्ड करके रखे हैं, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर कोई आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्री में अगर आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई एसेट्स है, या तो आप कहीं साइनिंग अथॉरिटी भी हो, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो, आपको ITR 2 मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इज बेसिक, अगर PGBP से इनकम है आपका, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। कैपिटल गेन का इनकम है, कैपिटल गेन में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं, शेयर बेचे हैं, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, कुछ भी बेचा है, घर बेचा है, सब बेच दिया है, कैपिटल गेन हेड में इनकम आया, कंपलसरी ITR 1 फाइलिंग नहीं हो सकता है। एक से ज्यादा घर से इनकम आ रहा है, ITR 1 फाइल नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी, लॉटरी लग गई है, लॉटरी लगी है तो भी ITR 1 फाइल नहीं ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। हॉर्स रेस में जीते हो, सट्टा वट्टा कुछ लगाया तो भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है, ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, एक्सक्यूज मी, अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, अगर कोई भी हेड का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, कोई भी हेड ऑफ इनकम, सैलरी का तो हो ही नहीं सकता है ऑब्वियसली, कोई भी हेड का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको दूसरा ITR सिलेक्ट करना पड़ेगा, ITR 1 का फाइलिंग नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजर चेंज ये साल आया हुआ है, individual who is assessable for whole or any part of income on which TDS has been deducted in the hands of person other than the assessee। मैं मेरे रिटर्न में किसी और पर्सन का इनकम भी मर्ज कर रही हूँ और वो और पर्सन के इनकम पे TDS कटा हुआ है, तो ITR 1 का फाइलिंग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर माइनर चाइल्ड को कुछ इनकम हो रहा है तो उसके पेरेंट के ITR में मर्ज होता है, अगर उस पर TDS कट रहा है तो ITR 1 फाइलिंग नहीं हो सकता है, वरना आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। नाउ दिस इज द ग्रॉस टोटल इनकम ITR 1 और ITR 2 का। पहले सैलरी में 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था लास्ट ईयर तक अंडर सेक्शन 16(1)(a), अभी वो बढ़ा दिया है अप टू 50,000। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरी इज नाउ 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स जो 16 क्लॉज 3 में मिलता था 2,500, इट इज स्टिल कंटिन्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन रिबेट अंडर सेक्शन 87(a) 1920 में अप टू 3,50,000 का अगर टोटल इनकम था
तो 2500 तक का आपको रिबेट मिलता था, which has been increased from 3,50,000 to 5 लाख। 5 लाख की इनकम तक पे टैक्स नहीं लगेगा, आपको 12,500 तक रिबेट मिलेगा। और 5 लाख की 1 रुपए भी ऊपर इनकम चली गई, 1 रुपए इन द सेंस 4-5 रुपए के बाद राउंड ऑफ होता है, तो 5 रुपए के ऊपर और इनकम चली गई तो आपको नॉर्मल जो बेसिक 2.5 लाख वाला स्लैब है वो अप्लाई होगा, अलॉन्ग विथ आपको जो इंटरेस्ट लगेगा टैक्स पे वो। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि इनकम कितना जा रहा है, 5 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं। 87A का इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो ITR 1 ओनली प्लेन लोग यूज कर सकते हैं, सिर्फ सैलरी इनकम है, एक ही घर है उसके पास और कोई घर से इनकम नहीं आ रहा है, कहीं डायरेक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड नहीं किए हुए हैं। एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ 5,000 आती है, गरीब 5,000 के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है, और टोटल इनकम 50 लाख के नीचे, तो आप ITR 1 यूज कर सकते हो। अनडिस्क्लोजर या अंडर डिस्क्लोजर आपका आराम से कॉट हो सकता है, बिकॉज ROC के वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, GST के वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बहुत डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ये लोग लेते हैं। सो रिपोर्टिंग शुड बी 100% एंड प्रॉपर। आप सेफर साइड के लिए आपके क्लाइंट से, SSP से, मेल्स पे डिस्क्लोजर ले सकते हो कि अगर आप इसमें कहीं कंडीशन में आते हो तो प्लीज हम लोग को डिस्क्लोज करो, तो यू विल बी सेफ। अब ITR 2 कब यूज कर सकते हैं? जब ITR 1 नहीं यूज होगा, सैलरीड पर्सन है बट 50 लाख से ऊपर सैलरी चली गई, तो ITR 1 नहीं होगा, ITR 2 यूज होगा। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, ITR 1 नहीं यूज होगा, ITR 2 यूज होगा। अदर सोर्सेज से इनकम है तो भी ITR 2 यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर जाता है, ITR 2 का फाइलिंग। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हो, ITR 2 फाइल होगा। मतलब जहां ITR 1 अप्लाई नहीं होगा, आप एक तो बिजनेस वाले SSC नहीं हो, यू आर सैलरीड पर्सन, और यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और यू आर गेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जहां ITR 1 अप्लाई नहीं होगा वहां पे ITR 2 अप्लाई होगा। अब ITR 1 इज वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, 1-2 पेज का फॉर्म रहता है, आपने भी देखा होगा। नाउ ITR 2 में सारे मेजर डिटेल्स कवर करते हैं, डायरेक्टर से रिलेटेड, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, इसीलिए हम लोग को ITR 2 फाइल करना है। अब हु इज नॉट एलिजिबल टू यूज दिस ITR फॉर्म? ITR 2 कौन नहीं यूज कर सकता है? जिसको इनकम PGBP से, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से, वो ITR 2 फाइलिंग नहीं कर सकते। उसको इधर ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, या तो अगर प्रिजम्पटिव में है तो ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। तो थिंग इज, जहाँ पे ITR 1 यूज नहीं होगा वहाँ पे ITR 2 यूज होगा, बट ये ऑब्वियसली PGBP वालों को अप्लाई नहीं होता है। PGBP के लिए ITR 3 एंड ITR 4 डिपेंडिंग अपॉन वो प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ITR 2, 3, 5, 6, 7 सब में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया था, लास्ट ईयर आया था, जो अभी भी है, रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर नॉन रेसिडेंट है तो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता है, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, फुल डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, उसका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेसिडेंस कहाँ पे था, और वो कंट्री का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हो, या तो फॉरेन कंट्री में बैंक अकाउंट्स होल्ड करते हो, या तो कोई कस्टोडियल अकाउंट, डीमैट अकाउंट कुछ भी होल्ड करते हो, तो उसका भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा ITR 2, 3, 5, 6, 7 सब में। So this is the screenshot of ITR pertaining to residential status. If you are resident, you have to select conditions and criteria. resident but not ordinary resident, and non-resident. अगर नॉन रेसिडेंट है तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेसिडेंट देना है और वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, ठीक है। तो अगर आप रेसिडेंट है, या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो ही आप ITR 1 एंड 2 फाइल कर सकते हो, वरना नॉन रेसिडेंट ITR ये फाइल नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस डिस्क्लोजर इज पर्टेनिंग टू डायरेक्टर्स में, अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो तो नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, कंपनी का पैन,
अगर आप उसमें कोई शेयर्स होल्ड करते हो तो उसकी डिटेल्स, और आपका डिन नंबर देना पड़ेगा। डिन नंबर लास्ट ईयर तक नहीं पूछता था, इस बार डिन नंबर मैंडेटरी डालना है। This is the disclosure required. Now, very important disclosure pertaining to investment in unlisted company, ITR 235 पे एप्लीकेबल है ये। अगर आपके पास कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, कब आपने एक्वायर किया था, कितने में एक्वायर किया था, उसका फेस वैल्यू क्या था, आपने कितने में परचेज किया था, अगर आप सेल कर रहे हो तो कब सेल किया, कितने शेयर्स बेचे और कितने में बेचे, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनी, ये लास्ट ईयर भी था, ये ईयर में एक चेंज आया इसके शेड्यूल में। इधर टाइप ऑफ कंपनी भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इंडियन कंपनी है मतलब डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, बाकी पूरा शेड्यूल एज इट इज है। सिर्फ एक डिस्क्लोजर इसमें बढ़ा है टाइप ऑफ कंपनी का, इज इट फॉरेन कंपनी और इज इट डोमेस्टिक कंपनी। तो दिस इज द शेड्यूल जो आपको दिखता है आईटीआर में, नेम, पैन, ओपनिंग बैलेंस कितने थे शेयर्स के। अभी ये डिस्क्लोज नहीं किया तो कहीं से ट्रैक हो सकता है क्या? यस, ये भी ट्रैक हो सकता है। आरओसी में शेयर होल्डर्स की डिटेल फाइल होती है अलोंग विद पैन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अलोंग विद ड्यूरिंग द ईयर कितना इशू किया है, ड्यूरिंग द ईयर कितना बेचा है। अगर आपका पैन यहाँ और वहां से ट्रैक हो गया तो आपका ये रॉन्ग डिस्क्लोजर में चले जाएगा। तो प्लीज टेल देम, अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, ITR 2 में एक शेड्यूल होता है, AL शेड्यूल, एसेट एंड लाइबिलिटी शेड्यूल। अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है। बट आपको कुछ मूवेबल इमूवेबल एसेट्स की इंफॉर्मेशन देने पड़ेंगे और कुछ लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, विच इज नोन एज एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो डिस्क्लोजर लास्ट ईयर था वही सेम डिस्क्लोजर ये साल में। बट आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। अगर कोई भी क्लाइंट का 50 लाख से ऊपर आपका जाता है डिटेल्स, तो आपको ये सारे AL शेड्यूल के डिटेल्स उससे मंगवाने पड़ेंगे। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, ITR 1-2, उसमें एक और चेंज आया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर के रिटर्न में भी था, कहाँ से आपको कैसी एम्प्लॉयमेंट है आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, पेंशनर्स है, अदर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे एक और चेंज आया है, नॉट एप्लीकेबल। तो अगर आपको फैमिली पेंशन आ रहा है तो आप लोग एम्प्लॉयर की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल को टिक करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये चेंज आया है ITR 1 में एंड ITR 2 में। नाउ ITR 3, ITR 3 में ये ईयर बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, स्पेसिफिकली चेंजेस पर्टेनिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट। एज यू आर अवेयर, टैक्स ऑडिट का लिमिट बढ़ा दिया है, जो पहले 2 CR था अभी 5 CR हो गया है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो ITR 3 आप कब फाइल कर सकते हो? अगर आपका बिजनेस इनकम है, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, तो आपको मैंडेटरी ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट में कवर्ड है अंडर सेक्शन 44AB, तो आपको कंपलसरी ITR 3 डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना पड़ेगा। नाउ ITR 4, आप ITR 4 कब यूज कर सकते हो? This form is for individual, HUF and firm other than LLP. Limited liability partnership को ये फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? मैंडेटरी ITR 3. Being a resident having total income up to 50 lakhs and have income from business and profession which is computed under section 44AD, 44ADA and 44AE. प्रिजम्पटिव इनकम, इसका स्लैब कितना है? अगर आप इनकम 50 लाख से ऊपर शो करते हो तो ITR 4 नहीं फाइल कर सकते हो। 44AD, इधर आपको 8% और 6% इनकम दिखाना पड़ेगा। 44ADA,
प्रोफेशन के लिए यूज होता है, प्रोफेशनल के लिए, जिसमें आपको 50% मिनिमम इनकम दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग प्रिजम्पटिव फाइल करें कि टैक्स ऑडिट में जाए। तो इन फर्दर स्लाइड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि कब हम लोग प्रिजम्पटिव में जा सकते हैं और कब हम लोग को टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा। बिकॉज आपको रिटर्न नॉन फाइलिंग या रॉन्ग फाइलिंग की पेनल्टी कम है, बट अगर आपका टैक्स ऑडिट मिस आउट हो गया देन यू आर लाइक वॉश्ड ऑफ विद एन नंबर ऑफ पेनल्टीज। अभी ITR 4 कौन यूज नहीं कर सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डायरेक्टर इन एनी कंपनी, आप ITR 4 यूज नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यू कांट यूज ITR 4। फॉरेन कंट्री में एसेट्स या साइनिंग अथॉरिटी या कुछ भी है तो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो। कैपिटल गेन का इनकम है, ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एसएससी का एक से ज्यादा घर है तो आप ITR 4 का फाइलिंग नहीं कर सकते हो। एग्रीगेट इनकम शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख के ऊपर इनकम चला गया तो ITR 4 का फाइलिंग इज नॉट अलाउड। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है कोई भी हेड ऑफ इनकम में, ITR 4 का फाइलिंग इज नॉट अलाउड। सिमिलरली अगर आप किसी और का इनकम आपके ITR में टैक्स कर रहे हो और वो पर्सन के इनकम पे टैक्स कटा हुआ है, TDS कटा हुआ है, देन ITR 4 इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ एलिजिबल बिजनेस ITR 4 के लिए 44 AD है, तो यू कैन टेक 8% ऑफ टर्नओवर। आप सीधा 8% ऑफ टर्नओवर इनकम दिखा सकते हो, 6% भी दिखा सकते हो, 8% भी दिखा सकते हो। 6% आप कब दिखा सकते हो? अगर आपका ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर सब कुछ अकाउंट पे ही चेक से आया हुआ है तो यू कैन शो 6%। अगर आपका कैश से आया हुआ है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम अकाउंट पे ही चेक्स या बैंक के थ्रू, देन यू हैव टू शो 8%। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा कैश रिसीट्स, ये जो 8% आप डिस्क्लोजर करोगे ना, डिपेंड करेगा कि आप टैक्स ऑडिट में आ रहे हो या नहीं। कैसे, हम लोग फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। तो 8% कैश सेल्स, 6% डिजिटल पेमेंट्स के लिए प्रिजम्पटिव टर्नओवर का लिमिट है। बट पर्सन क्या होना चाहिए? रेसिडेंट एसएससी होना चाहिए। अगर प्रोफेशन है तो ग्रॉस रिसीट शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 लाख, और अगर 44 AD में आप इनकम शो कर रहे हो तो मिनिमम आपको 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट शो करना पड़ेगा। नाउ ITR 5, 6 and 7, 6 and 7 are yet to out। 5 अब भी रिसेंटली उसका यूटिलिटी आया है, तो 5 कब फाइल कर सकते हैं? पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। मतलब आपका पार्टनरशिप फॉर्म्स में ITR 5 यूज होता है। ITR 6 कंपल्सरीली कंपनीज के लिए यूज होता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ITR 7 चैरिटेबल ट्रस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके लिए यूज होता है। तो कंफ्यूजन ये रिटर्न्स में है ही नहीं। कंफ्यूजन इज बिटवीन ITR 1 एंड ITR 2, ITR 4 and ITR 3. So this is very crystal clear ITR. Now, as I already told you, Finance Act 2019 में एक मेजर चेंज आया है pertaining to mandatory return filing। अगर स्लैब के नीचे आपका इनकम जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बट आपके करंट अकाउंट में एग्रीगेट जितने भी आपके अकाउंट्स है उसमें डिपॉजिट 1 करोड़ के ऊपर गया है, 1 CR के ऊपर डिपॉजिट गया है तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटसोएवर द रीजन इज। लोन मिला है, ये मिला है, इधर से बेटे से पैसा आया, बेटी से पैसा है, व्हाटएवर, एग्रीगेट डिपॉजिट इन ऑल योर अकाउंट्स शुड बी लेस देन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो आपको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन भी है। नॉर्मली हम लोग ITR फाइलिंग 139(1) के अंडर करते हैं, अगर नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग है विद इन ड्यू डेट है तो। अभी एक और सेक्शन ऐड हुआ है
7th proviso to section 139(1). अगर आप ये 3 कंडीशंस में कहीं भी फंसते हो तो आप लोग को 7th प्रोविजो के अंडर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट इज डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर गया है तो आपको 7th प्रोविजो में रिटर्न फाइल करना है। सेकेंड, अगर have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding rupees 2 lakh for travel to foreign countries। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और वो ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर आ रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ऊपर जाता है तो भी आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये अभी तक कोई आईटीआर में डिटेल नहीं था, अब ये सारे आईटीआर में इंक्लूड हुआ है। वो आप लोग को पूछेंगे कि आप कौन से सेक्शन के अंडर रिटर्न फाइल कर रहे हो, 139(1) या 7th प्रोविजो टू 139(1। उसमें आपको ये BI, B2 और B3 ये 3 का डिस्क्लोजर मैंडेटरी देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो टिक कर देना, नॉट एप्लीकेबल अपने आप आ जाएगा। अगर यस है तो आपको इसकी फर्दर डिटेल्स देनी पड़ेगी। अभी एक और सेक्शन इंसर्ट हुआ है आईटीआर में, दैट इज शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 31st March 2020 was the normal date for investments in chapter 6A, which was extended up to 30th June, then it was further extended up to 31st July। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस क्लेम किए हुए हैं का पेमेंट किया हुआ है 31st जुलाई तक, तो आप वो ये रिटर्न में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली शेड्यूल दिया हुआ है चैप्टर 6A का। आपको पूछेंगे कि आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो आपने बिटवीन 1st April 2020 टू 31st July 2020 किया है। अगर यस है तो यस को टिक करना है, नो है तो नो को टिक करना है। नहीं भाई, हमने तो 31st मार्च तक पूरा प्लान कर लिया था। अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो स्पेसिफिकली ऐसा शेड्यूल दिखेगा, शेड्यूल DI। आपको शेड्यूल DI में उसके डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। लुक, यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस मिल जाएंगे, उसका एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। एलिजिबल अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर फाइनेंशियल ईयर 1920 अगर 31st मार्च तक है तो आपको यहाँ पे देना है, वरना आपको स्पेसिफिक शेड्यूल दिखता है 1st April 2020 टू 30th June 2020 विच वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31st July 2020। तो यहाँ पे आपको उसका डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। तो जनरल इंफॉर्मेशन में भी चेंजेस आए। अगर ITR 3, 5 और 6 है, certain additional details have been sought under audit information। जो ऑडिटर का डिटेल, अगर आपको टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है तो ऑडिटर का डिटेल्स आपको पहले भी देना पड़ता था। अभी आपको ऑडिटर का पैन नंबर देना या तो आधार नंबर देना उसके फॉर्म का, ये मैंडेटरी एक एडिशन हुआ है। ऑडिटर का पैन नंबर, आधार नंबर आपको शो करना पड़ेगा कहाँ पे, ITR 3, 5 और 6 में। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सारे ITRs में चेंज आया है। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपको तो टेनेंट का नाम आपको देना पड़ेगा। मैंडेटरी टेनेंट का पैन, आधार नंबर आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास उसका पैन नंबर नहीं है तो आप उसका आधार नंबर शो कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिकली उसके पास टैन नंबर है तो आपको टैन नंबर भी यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी से आपको इनकम आ रही है, लेट आउट से कोई भी रेंट आ रहा है, तो आपको जो टेनेंट है उसका पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर पैन उसके पास नहीं है तो आधार नंबर देना पड़ेगा। अगर उसके पास टैन नंबर है तो टैन नंबर भी कंपल्सरीली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कैपिटल गेन्स का शेड्यूल है। एडिशनल रिपोर्टिंग फॉर सेल ऑफ शेयर्स, एडिशनल रिपोर्टिंग फॉर सेल ऑफ शेयर्स, ये लास्ट ईयर भी शेड्यूल आया था।
इस बार स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट्स के लिए वो लोग ने सेम शेड्यूल दिया है, जहाँ पे आपको ISIN कोड्स देने शेयर्स के, शेयर्स कितना, नेम ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, सेल प्राइस, परचेज प्राइस कब क्या था, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ सेल, फेयर मार्केट वैल्यू, जो ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन आया था लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा, 31 जनवरी 2018 का फेस वैल्यू का फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग को लेना है, उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसाइड होगा। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट थे, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्सेबल होते हैं, बट 1 लाख तक का आपको बेनिफिट उसमें दिया गया है। अगर आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख के ऊपर जाता है तो ही आपको 10% टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। वैसा ही सिमिलर शेड्यूल नॉन रेसिडेंट्स के लिए ये साल ऐड किया हुआ है विथ ऑल दी सेम डिटेल्स। तो अगर नॉन रेसिडेंट का केस है तो आपको ये शेड्यूल कंपल्सरीली फिल करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ITR 3, 5 और 6 में आपको देना है। इस पे डिपेंड करेगा कि आप लोग को टैक्स ऑडिट करवाना है या टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है। तो व्हाट आर द डिस्क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डिस्क्लोजर के रिप्लाई यस या नो में मैंडेटरी रिटर्न्स में देने पड़ेंगे। फर्स्ट, वेदर, यू कैन सी दिस A2, whether assessee is declaring income only under section 44AE, 44B, BB, AD, ADA। शॉर्ट में, अगर ITR 4 अप्लीकेबल नहीं है तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा, और ITR 3 में आपको टिक मारना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग प्रिजम्पटिव यूज कर रहे हैं। तो ITR 4 क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो? अरे मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ITR 4 नहीं फाइल कर पा रहे। हम लोग कोई कंपनी में डायरेक्टर है, ITR 4 नहीं फाइल कर पा रहे, तो हम लोग प्रिजम्पटिव में ही ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आपका ओनली प्रिजम्पटिव से इनकम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, यस करो और नो फर्दर डिस्क्लोजर। अगर आपका प्रिजम्पटिव के अलावा भी इनकम है, if no, you can see A2I, if no, whether during the year total sale, turnover, gross receipt of business exceed 1 crore rupees but does not exceed 5 crore। आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ से नीचे है। अब टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होगा? 5 करोड़ के ऊपर है तो टैक्स ऑडिट अप्लाई होगा, बट 1 करोड़ के ऊपर है और 5 करोड़ के नीचे है तो आप लोग को टिक करना है कि हाँ भाई हम लोग का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको फर्दर ये डिस्क्लोज करना है कि ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश रिसीट, जो कैश में आपको रिसीट आया है या आपने कैश में पेमेंट की है, कैश एक्सपेंसेस शो किए, वो टोटल रिसीट या टोटल पेमेंट के 5% के ऊपर जाता है क्या? तो आपको ये टिक करना है। हाँ, हम लोग का तो कैश रिसीट भी हम लोग 8% में दिखा देते हैं, नॉन कैश रिसीट से हम लोग 6% में दिखाते हैं, हमारा तो 5% के ऊपर जाता है। अगर 5% के ऊपर जाता है तो क्या? अभी मैं आपको ये चार्ट बताती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। ये कंफ्यूजन लास्ट ईयर तक नहीं था, सीधा सीधा आपका लिमिट था 1 करोड़ के ऊपर गया, प्रिजम्पटिव नहीं ले रहे हो आप टैक्स ऑडिट करवाओ वरना मत करवाओ। अभी स्पेसिफिक स्लैब्स आए टैक्स ऑडिट में भी। फर्स्ट, क्रिस्टल क्लियर केस, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है 44 AB कंपल्सरीली, 44 AB टैक्स ऑडिट इज मैंडेटरी, ठीक है। सेकेंड स्लैब इज, अगर आपका टर्नओवर 2 CR से ऊपर है बट अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, तो आपको ऑडिट करवाना है क्या? फर्स्ट थिंग, अगर आपका कैश रिसीट या तो कैश पेमेंट्स 5% से कम है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आता है, आप जो प्रिजम्पटिव में 8%, 6% दिखाएंगे ना बाइफिकेशन, उसमें अगर आपका टर्नओवर 8% में ज्यादा होगा ना, मतलब आपका अपार्ट फ्रॉम बैंक टर्नओवर ज्यादा था, तो फिर आपको
मैंडेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। अब इसमें कैश रिसीट्स में क्या आएगा, कैश पेमेंट्स में क्या आएगा, आई विल टेल यू इन फर्दर स्लाइड। बट इतना ध्यान रखो, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं गया है, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में ही है, तो अगर कोई कैश रिसीट नेग्लिजिबल है और कैश पेमेंट्स नेग्लिजिबल है तो आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। अगर 5% से ऊपर गया तो आपका ऑडिट मैंडेटरी होगा, इररिस्पेक्ट ऑफ आपका टर्नओवर 5 करोड़ है या नहीं। सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से भी कम है, 2 करोड़ से भी कम है, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो या तो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एचयूएफ हो, नेट प्रॉफिट रेशियो लेस देन 8%, 6%, अगर आप 8%, 6% से नीचे दिखाते हो तो आपको तो कंपलसरी ऑडिट करवाना ही पड़ता है। 44AB shall apply with respect to 44AD। अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो 8%, 6% से ऊपर बताते हो तो आपको ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपका कैश रिसीट और कैश पेमेंट 5% से ऊपर जा रहा है तो ऑडिट मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। अब ये लिमिट कब लगा के रखी है, अगर आपका टर्नओवर 1 CR से ऊपर जाता है तो ही। यू कैन सी इन दिस प्रीवियस स्लाइड जो 8.2 क्लॉज 2 का डिस्क्लोजर है, दे आर सेइंग स्पेसिफिकली अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जाता है देन ओनली दिस प्रोविजन विल अप्लाई। 1 करोड़ के नीचे है तो कैश रिसीट या कैश पेमेंट का कोई टेंशन लेना ही नहीं। 1 करोड़ के ऊपर गया तो ही आपको ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने हैं। 1 करोड़ के ऊपर गया है, अगर टर्नओवर लेस देन 1 करोड़ तो ये ऑडिट का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 1 करोड़ से ऊपर गया है और अगर आपका कैश रिसीट और कैश पेमेंट लेस देन 5% है तो नो ऑडिट रिक्वायर्ड, मोर देन 5% है तो ऑडिट इज मैंडेटरी। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज आया है, आपको बहुत सेंसिबली इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टैक्स ऑडिट मिस हो गया तो फिर हेवी पेनल्टीज फेस करना पड़ता है। अब हम लोग कैश प्रॉफिट, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। 5% का जो आप लिमिट कैलकुलेट करोगे उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे। फर्स्ट थिंग, डोंट इंक्लूड कैश विड्रॉल्स फॉर बैंक एंड डेटर्स आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। आप जो बैंक से कैश निकालते हो वो आपको इसमें इंक्लूड करने की या गिनने की जरूरत नहीं है। आप रिसीट्स इसमें क्या गिनेंगे, रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, अगर लोन आया है आपको कैश में, रिसीट फ्रॉम लोन, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, अगर आपने कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या तो आपने कोई एसेट बेचा है कैश में, तो ये सब आपको कैश रिसीट्स में लेना पड़ेगा। और पेमेंट फॉर द ईयर, पेमेंट में क्या क्या आएगा, जो आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में वो नहीं इंक्लूड करेंगे। क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल एट द ईयर नहीं इंक्लूड करेंगे। क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा एक्सपेंस में, अगर आपको कोई पेमेंट आया है, पेमेंट टू क्रेडिटर, रीपेमेंट ऑफ लोन, एडवांस पेड टू क्रेडिटर, कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल लिया है कैश में, या तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर आपने कोई कैश में फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं तो ही आप इसमें इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर एज इफ आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। और ये आप कब कैलकुलेशन या कब दिमाग लगाना चालू करेंगे, अगर आपका टर्नओवर 1 CR से ऊपर जाता है तो इतना आपको वर्किंग करके रखना पड़ेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप टैक्स ऑडिट में आते हैं या टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन 80D मेडिक्लेम। 80D में भी आपको FAQ का आंसर्स करना है। कौन से 2 FAQ इसमें आए ITR में, ये भी सारे 1 to 4 ITRs में आया हुआ है। whether you or any of your family members is a senior citizen, आपको टिक करना है excluding parents, and whether any of your parents is senior citizen, and then details of premium paid under subhead like health insurance and preventive health checkup scheme। ये पहले भी था बट अभी ये 2 FAQs वो लोग ने ऐड किए हैं कि आपका फैमिली मेडिक्लेम है तो उसमें कोई सीनियर सिटीजन है क्या, और अगर आपके पेरेंट्स का आपने पेमेंट कर रहे हो मेडिक्लेम का तो उसमें कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो दिस 80D में 2 मेजर FAQs आए हुए हैं।
अब वेरियस अल्टरनेटिव मैकेनिज्म अवेलेबल फॉर ई वेरिफिकेशन। ई वेरिफिकेशन आप कैसे करवा सकते हो? ईवीसी थ्रू नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग को लिंक, आपके बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो पैन के साथ। ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट्स, आप प्री वैलिडेट का ऑप्शन आपको दिखता है पोर्टल पे, प्री वैलिडेट करके रख सकते हो। डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ईवीसी डीमैट अकाउंट के थ्रू भी प्री वैलिडेट करके रख सकते हो। अब ईवीसी थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप वो भी रजिस्टर करके रख सकते हो, बट आपका इनकम शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 लाख एंड रिफंड शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। या तो अभी जो मेजर बूमिंग है वो आधार ओटीपी, सीधे सीधा आधार ओटीपी से ईवीसी जनरेट कर सकते हो। एक और इसमें चेंज आया है, एज पर सर्कुलर 13/2020 आप असेसमेंट ईयर 2015-16 से अप टू असेसमेंट ईयर 2019-20 तक अभी ई वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अगर आप लॉग इन करोगे तो आपको एक नया पोर्टल, यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखेगा, ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आप उस पर क्लिक करके आपके पुराने अगर रिटर्न कोई छूट गए, इनवैलिड हो गए, तो आप लोग इसके थ्रू असेसमेंट ईयर 15-16 से असेसमेंट ईयर 19-20 तक ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हो। नाउ वील गो टू आवर प्रीवियस स्लाइड, जहाँ पे हम लोग ने एक टेबल फॉर्म में, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कब कौन सा आईटीआर अप्लीकेबल होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। You can see this table. ITR 567 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ITR 567 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंपनी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए स्पेसिफिकली है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है तो ITR 1, 2, 4 एज पर टेबल बिलो कब सिलेक्ट करना है, और ITR 3 कब सिलेक्ट करेंगे? ITR 1 to 4 इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब ITR 1, 2 या 4 हम लोग कब सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो कब सिलेक्ट नहीं कर सकते? एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस, एज पर हेड ऑफ इनकम और एज पर अदर कंडीशन। ये सारे, सब कुछ, सारे कंडीशन ये स्पेसिफिक टेबल्स में कवर्ड है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ योर ITR रिटर्न्स ऑफ एसएससी, तो आप ये टेबल रेफर कर सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर तो आप ITR 1 to 4 कोई भी यूज कर सकते हो, बट अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो फिर आपको ITR 1 नहीं यूज कर पाओगे, ITR 4 भी नहीं यूज कर पाओगे, ITR 2 यूज करना पड़ेगा। सैलरी इनकम है, सैलरी हेड से तो आप कोई भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन यूर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो आप कोई भी ITR यूज कर सकते हो। अगर हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है तो ITR 1 और ITR 4 का फाइलिंग पॉसिबल नहीं है, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट है, तो मैंडेटरीली ITR 4 यूज करना है। 44 AE में कवर हो रहे हो, मैंडेटरीली ITR 4 यूज करना है। और कोई केस का बिजनेस है तो ITR 1 to 4 नहीं यूज कर सकते हो, ITR 3 यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जहां जहां आप ITR 4 नहीं यूज करते हो, आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, और ITR 3 में आपको शो करना पड़ेगा दैट यू आर शोइंग इनकम एज पर ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन। अगर आपको कैपिटल गेन से इनकम है तो आप ITR 1 और 4 कोई भी केसेस में यूज नहीं कर सकते हो, आपको ITR 2 यूज करना पड़ेगा। अदर सोर्सेज से आपको इनकम है तो आप ITR 1 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो नॉर्मल केसेस में, इन ऑल अदर केसेस एक्सेप्ट अगर आपको लॉटरी वॉटरी लगी है या तो हॉर्स रेस से जीते हो तो आप ITR 1, ITR 4 यूज नहीं कर सकते हो। अदर सोर्सेज में लॉस है, आपका अदर सोर्सेज में आपने इनकम शो किया है, सपोज इंटरेस्ट इनकम या तो कोई स्पेसिफिक इनकम आपने शो किया है और आपने सेक्शन 57 में उसका एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है, तो आपको ITR 1 और ITR 4 फाइल करने नहीं मिलेगा।
अगर 115 BBDA में या तो आपका कोई DTA का इनकम है तो भी आप ITR 1 और ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो, आपको मैंडेटरी ITR 2 यूज करना पड़ेगा। डिडक्शन है, ओनली डिडक्शन अवेलेबल फॉर ITR 1 इन ITR 4 इज जो सेक्शन 57 क्लॉज 2A का फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलता है ना, वही सिर्फ आप ITR 1 में यूज कर सकते हो, ITR 4 में। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई डिडक्शन आप देख सकते हो, अदर डिडक्शन अंडर 57 आप ITR 1 ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो। 80 QQB रॉयल्टी, 80 RRB रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स आप ITR 1 ऑन ITR 4 में या अदर इनकम में नहीं बता सकते हो, आपको मैंडेटरी ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है या कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, इन एनी केस आप ITR 1 और ITR 4 नहीं यूज कर सकते हो, आपको ITR 2 यूज करना पड़ेगा या तो ITR 3 यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ बिजनेस। अदर आइटम्स, अदर कंडीशंस क्या है, अगर टैक्सेबल इनकम आपका 50 लाख से ऊपर है तो ITR 1 फाइलिंग इज नॉट पॉसिबल, ITR 4 फाइलिंग इज नॉट पॉसिबल। इफ यू आर पार्टनर इन एनी फर्म ऑब्वियसली ITR 1 to 4 कुछ नहीं होगा, ITR 5 फाइल करना पड़ेगा। डायरेक्टर इन द कंपनी ITR 1 और 4 फाइलिंग नहीं हो सकता है, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। हेल्ड अनलिस्टेड शेयर्स 1 और 4 नहीं फाइल कर सकते हो, ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर इनकम 5000 है, एग्रीकल्चर इनकम विद इन अप टू 5000 है तो कोई भी ITR फाइल कर सकते हो, 5000 से ऊपर गया तो कंपल्सरी ITR 1 ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो। 90-91 का रिलीफ रेट है तो ऑब्वियसली आप 1 और 4 नहीं यूज कर सकते हो। फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी है या तो कोई भी इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्री में तो आप लोग ये यूज नहीं कर सकते हो। पास थ्रू इनकम्स, अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू कोई पास थ्रू इनकम्स है आपकी तो आप ये फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो। अगर और किसी का TDS, आप किसी और का इनकम आपके रिटर्न में मर्ज हो रहा है, एग्जाम्पल माइनर चाइल्ड, तो भी आप ITR 1 एंड ITR 4 यूज नहीं कर सकते हो अगर TDS कटा है तो। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलिंग अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 7th प्रोविजो, अगर ये एप्लीकेबल है तो ये तो सारे रिटर्न्स में ही आपको कंपलसरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा रिगार्डिंग डिपॉजिट, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिगार्डिंग फॉरेन ट्रैवल। तो मेजर कंफ्यूजन आपका, आई ट्राई टू सॉल्व थ्रू दिस स्लाइड। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ याद रखनी पड़ेगी, जैसे इमीडिएटली आप E-वेरिफिकेशन करवा लो, अगर E-वेरिफिकेशन होता है तो क्लाइंट का, जब तक E-वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तब तक आप ओनली वेरिफिकेशन फॉर्म्स डाउनलोड कर पाओगे, आप ITR 5 प्रॉपर डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और ये वेरिफिकेशन फॉर्म कुछ वैलिडेशन नहीं रखता है, क्यों? क्योंकि इसमें ना ही इनकम दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, आप लोग को सिर्फ असेसी का नाम, पैन नंबर, कौन सा फॉर्म फाइल किया है वो ही दिखेगा। अनलेस आप इसको वेरिफिकेशन करवाओ तो ही आप प्रॉपर ITR फाइल डाउनलोड कर पाओगे, वरना आप ITR फाइल डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, जैसे ही आप रिटर्न अपलोड करते हो, अगर E-वेरिफिकेशन पॉसिबल है तो आप E-वेरिफिकेशन तब भी खत्म कर लो, डोंट वेट फॉर 120 डेज। अरे ये तो हम लोग बाद में कर सकते हैं, जिसका E-वेरिफिकेशन होता है वो इमीडिएटली आप E-वेरिफिकेशन इसका करवा दो। सेकेंड थिंग इज सेंसिबली यू हैव टू ऑप्ट कब ITR 1 अप्लाई होता है एंड कब ITR 2 अप्लाई होता है। ITR 1 इज वेरी वेरी बेसिक फॉर्म, उसमें ज्यादा डिस्क्लोजर्स अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप कहीं डायरेक्टर है या फॉरेन कंट्री में एसेट होल्ड करते हैं या अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं, इफ यू विल थिंक कि अगर मैंने नहीं डिस्क्लोज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ROC में वो कंपनी के रिटर्न्स आपके जो होल्डिंग है उसके पैन नंबर्स के साथ जा रहे हैं, तो विच कैन बी इंटरकनेक्टेड और आपको नोटिस आ सकता है शो कॉज का कि आपने रिटर्न फाइलिंग रॉन्ग किया है। तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट एवरी डिस्क्लोजर जो आपको देने हैं। आपको एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और वो चेकलिस्ट आपको देना पड़ेगा आपके असेसी को या तो क्लाइंट्स को,
कंफर्मिंग कि आपका क्या क्या डिस्क्लोजर है बताओ, क्योंकि फिर फ्यूचर में इससे प्रॉब्लम हो सकता है। सरचार्ज और टैक्स स्लैब रेट, ये तो आप लोग को ऑब्वियसली ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज, आप ब्लाइंडली आपके आईटी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। एट टाइम्स सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, तो आप लोग को एटलीस्ट बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे एरर्स हुए हैं पहले कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है और रिटर्न फाइलिंग हो गया है, तो दिस मे कॉल फॉर डिफेक्टिव नोटिस, तो आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग को ये सिलेक्शन रूल्स याद रखने हैं। आप ये टेबल कभी भी रेफर कर सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको सिलेक्शन रूल्स में। तो ITR 1 कब अप्लाई होगा, ITR 4 आप कब फाइल नहीं कर सकते हो, कब आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा, तो आपको ये सारा डिटेल टेबल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर डायरेक्टर है तो डिन नंबर आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको 87A का रिबेट ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहले 3,50,000 था, अभी बढ़ के 5 लाख हो गया है। 5 लाख के ऊपर 1 रुपए भी इनकम चला गया तो आपको 2,50,000 वाला स्लैब अप्लाई हो जाएगा इंडिविजुअल केस का। अप टू 5 लाख आपको कुछ टैक्स नहीं लगेगा। तो प्लान योर एसएससी अकॉर्डिंगली। अपार्ट फ्रॉम दिस, जहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखो, अगर सैलरीड पर्सन है, बिजनेस इनकम नहीं है, अगर ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हो तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट विथ ITR 2। अगर कंजम्पटिव इनकम में है, ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो तो आपको ITR 3 में फुल डिस्क्लोजर देके फाइल करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको क्लाइंट का स्पेसिफिकली पासपोर्ट मंगवाना पड़ेगा। पासपोर्ट की एंट्रीज आपको पर्सनली चेक करनी पड़ेगी। यू कांट रिलाई ब्लाइंडली ऑन के नहीं मैं तो इंडिया में ही था। क्यों? क्योंकि आपको 2 डिस्क्लोजर्स में काम आएगा। एक तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका कोई फॉरेन ट्रैवल है क्या, और फॉरेन ट्रैवल है तो आपको उनसे मंगवाना पड़ेगा कि 2 लाख से ऊपर एक्सपेंसेस हुआ है कि 2 लाख से नीचे एक्सपेंसेस हुआ है, ये आपको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। कोई भी मिस्टेक रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनीज मत करना, बिकॉज यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर डिस्क्लोज होता है और जो कंपनी ROC में रिटर्न फाइलिंग करती है उसमें शेयर होल्डर्स के पैन जाते हैं, तो दैट इंटरलिंकेज इज पॉसिबल। तो अगर आपके पास कोई भी शेयर्स है कोई भी अनलिस्टेड कंपनी के, तो आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ये साल लास्ट ईयर भी डिस्क्लोज नहीं किया था, अगर आपको फ्यूचर में वो बेचने रहेंगे और अगर आपने अब भी ITR में डिस्क्लोज नहीं किया है तो वो भी स्पेसिफिकली रॉन्ग रिपोर्टिंग हो जाएगा, आपको वो डिस्क्लोजर्स देने ही पड़ेंगे। एसेट लायबिलिटी शेड्यूल का प्रिपरेशन पहले ही करके रखो। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर जा रहा है, इवन इफ बिजनेस नहीं है, तो भी आपको स्पेसिफिक डिटेल्स देनी ही पड़ेगी। अब ये फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन में 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सैलरी हेड में उसको डिस्क्लोज करो या तो आप उसको अदर सोर्सेज में शो करो। अदर सोर्सेज में अगर कोई गवर्नमेंट पेंशन फंड या ऐसा कोई फंड से आ रहा है तो आप अदर सोर्सेज में शो करो, उसमें जो आपका वो सेक्शन 57 क्लॉज 2 का बेनिफिट है वो ले लो। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर से ही आ रहा है बहुत टाइम से, तो आप लोग फिर सैलरी हेड में नॉट एप्लीकेबल करके फैमिली पेंशन शो कर सकते हो। ITR 3 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स को लेके, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको मैंडेटरी एक्साइज करनी ही पड़ेगी, कैश रिसीट्स में क्या आया और कैश पेमेंट्स में क्या गया है। 44 AD के टर्नओवर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी चेक पॉइंट है, अगर आप कैश रिसीट ज्यादा शो कर रहे हो, 8% में ज्यादा शो कर रहे हो, 6% में कम शो कर रहे हो, तो यू हैव टू कैलकुलेट कि टोटल रिसीट से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना कैश रिसीट। अगर ज्यादा हो रहा है और आप प्रिजम्पटिव में नहीं जा पाओगे, आपको कंपलसरी टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ITR 5, 6 and 7 completely sorted।
हम लोग ने जितने चेंजेस देखे हैं ऊपर, वो सब कुछ 5, 6, 7 में भी रेलेवेंट चेंजेस आए हैं। वी ट्राइड कि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल जो ITR में चेंजेस है वो इसमें कवर करें। बाकी आपको ये तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, ये स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देखना ही पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाइए, पासबुक्स मंगवाइए, जहाँ पे आप लोग शो कर पाए कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ के ऊपर रिसीट गया है या नहीं। फॉरेन ट्रैवल चेक करने के लिए यू नीड टू चेक कि उसका पासपोर्ट आपको देखना पड़ेगा कि कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मंगवाने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि वो लिमिट के ऊपर जा रहा है या क्या है डिटेल्स। तो आपको स्पेसिफिकली 7 प्रोविजन में रिटर्न फाइल कर रहे हो या सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो चेक करना पड़ेगा। DI शेड्यूल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू 31 जुलाई तक का डेट था। 31 जुलाई तक आप चैप्टर 66A का कोई भी बेनिफिट ले सकते थे। अभी एक एग्जाम्पल है, आपने कोविड रिलीफ में या तो कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्वेस्ट किया है, बट आपने 31 मार्च के बाद किया है। बट अगर आपने विद इन 31 जुलाई किया हुआ है तो आप वो यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ऑडिटर का डिटेल है तो ऑडिटर का पैन नंबर, आधार नंबर आपको मैंडेटरीली डालना पड़ेगा। आपको सारी ITR 356 में ये आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अगर कोई टेनेंट से, किसी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको मैंडेटरीली टेनेंट का पैन नंबर या आधार नंबर मंगवा के ही रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैपिटल गेन में आपको पहले से प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। जो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज था, FMV का डिटेल, BSc या NSC पे जो सबसे हाईएस्ट रेट होगा क्लोजिंग, वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। हर एक शेयर का ISIN नंबर, ISIN कोड आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्लाइंट से डीमैट स्टेटमेंट मंगवाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम डीमैट स्टेटमेंट, अगर आप वो लोग का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगवाते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको कैलकुलेटेड उसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 मिल जाएगा, उसका एक्विजिशन डेट मिल जाएगा, उसका सेल का डेट, सेल का अमाउंट, सब कुछ मिल जाएगा। अगर लिस्टेड शेयर्स है तो उसका रिपोर्टिंग ये हेड के अंदर होगा 112A के अंडर। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है तो उसका रिपोर्टिंग नॉर्मल कैपिटल गेन में होगा और अनलिस्टेड शेयर्स या अनलिस्टेड कंपनी की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है, नॉन रेसिडेंट का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग 112A रेसिडेंट RCC में यूज करते हैं, वही सारे डिस्क्लोजर्स हम लोग को नॉन रेसिडेंट के लिए भी देने पड़ेंगे। ये पहले नहीं था लास्ट ईयर के रिटर्न तक। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट, उसके बाद ही आप प्रॉपर डिस्क्लोजर करें। तो आप रिटर्न फाइल करने के पहले आप ये चेक कर लो कि वो ऑडिट में आएगा RCC या नहीं आएगा। और ये सब एक्सरसाइज आपको कब करनी है, अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जा रहा है तो ही आपको ये सब एक्सरसाइज करनी है, वरना आपको नहीं करनी है। तो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, आपका RCC क्लाइंट का पूरा लिस्ट बनाओ, कौन 1 CR से ऊपर है, कौन कैश रिसीट शो करता है। जैसे अगर आप देख सकते हो ग्रोसरीज वाले हैं या तो मेडिकल स्टोर वाले जिनको मेजर कैश रिसीट आती ही है, तो आप वो पहले से चेक करके रख सकते हो कि उसको ऑडिट में डालना है या नहीं। क्योंकि अगर आप ऑडिट में डालोगे तो ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर, अगर नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग है तो ड्यू डेट इज 30 नवंबर। आप ये चार्ट रेफर कर सकते हो कि आप रिसीट्स में क्या इंक्लूड करोगे और पेमेंट्स में क्या इंक्लूड करोगे। मेडिक्लेम का FAQ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके रिटर्न इनवैलिड हो चुके हैं ड्यू टू नॉन वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन, तो आप जल्दी से जल्दी उसको असेसमेंट या 15, 16 से 19, 20 तक आप ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा के रखिए। ओके, एनी स्पेसिफिक डाउट? अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप ले सकते हैं। Ma'am, we have the questions. I will request Hardik Tara to take over that. Okay. Hardik, I think you're on mute. Please check.
No, you aren't audible yet. Please check. No, Hardik. Come again? Am I audible, ma'am? Yeah. Go ahead. Very good afternoon to one and all. Respected CA Dhara Gandhi, ma'am. Thank you so much, Aishwarya, for giving me this opportunity. So I would like, may I start the questions, ma'am? Questionnaire? Yeah, sure. So, ma'am, the first and foremost question, which has been asked by more than 10 people, that could you please share the PPT after the session? Yes, I'll share the PPT. I think the PPT would be uploaded on this WIRC website, so you can directly download this PPT from there. So I'll share it with you. You can upload it there. Yeah, can you hear me? Yes, ma'am, you're audible. I think there's something wrong with the network of Mr. Hardik. Yeah. Hardik, we can go to the next question. You're not audible. Hardik, you're not audible. No. It's okay, Hardik. I'll take the next question until you see your technical issues. I'll carry on with the next question. Ma'am, if a person is having salary income and the TDS has been deducted on one-time assignment under professional income, which ITR shall be applicable? So the TDS has been deducted under section 194J. Yes, ma'am. Professional income says. Professional income, then you need to go for ITR 4 or either ITR 5. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम सैलरी कोई इनकम है अगर 194J दिख रहा है तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव बेसिक डिस्क्लोजर्स इन ITR 4 और अगर आप प्रिजम्पटिव नहीं ले रहे हो देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर्टेनिंग टू दैट 194J का इनकम एंड शो इट इन ITR 3. So ITR 1 and 2 won't go in this case. Okay, thank you, ma'am. Another question we have is a person with salary, income and losses to be carried forward from intraday trading has to go ITR 3, right? That is the question. I'll show you this chart in which I've specifically told you कि अगर आपको कोई भी brought forward losses है under capital gain head तो ITR 1 and ITR 4 won't apply. But if you are only salaried person आपको ये carry forward करना है तो ITR 2 would go, right? But अगर specifically आपका speculation business है तो आपको ITR 3 ही file करना पड़ेगा compulsory. एंड आपको ये भी प्रोविजन ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है. अगर इंट्राडे या एफएनओ ट्रांजैक्शन है तो जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉफिट या लॉस रहता है उसका टोटल आपको चेक करना पड़ेगा कितना जा रहा है. तो उससे आपको ये भी चेक पॉइंट रखना पड़ेगा कि ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. सिर्फ स्पेक्यूलेशन लॉस है तो आप लोग को ITR 3 जाना पड़ेगा. अगर
आपका कैपिटल गेन का नॉर्मल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैरी फॉरवर्ड है, तो यू कैन गो थ्रू ITR 2. Hardik, Can I ask the next question? please. Am I audible right now? Yeah. Really sorry for the technical issue. Ma'am, if there are two houses, one is self-occupied house and one house is on rent, then which ITR? यहाँ पे तो स्पेसिफिकली दे हैव रिटर्न दैट कि अगर मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप लोग को ITR 1, ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा. बट लास्ट ईयर ये चेंज आया था कि आपके पैन पे जितने भी हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है आपको सारे ITR में शो करने ही पड़ेंगे. So you will show one house property, self-occupied property, and another you have to show house property as let out property. तो दो प्रॉपर्टी हो गए, भले ही आपको दो प्रॉपर्टी से इनकम नहीं आ रहा है तो भी आप ITR 1 या ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हो. आपको अलाउ ही नहीं करेगा फाइल करने का. या तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मत बताओ, ओनली एक प्रॉपर्टी का इनकम बताओ, तो आप ITR 1 या ITR 4 फाइल कर सकते हो. बट करेक्ट डिस्क्लोजर इज show proper self-occupied property, show another property, and go for ITR 2. Okay, ma'am. Thank you so much. I hope that question was very well answered. Ma'am, AL schedule 50 lakhs only individual को it's applicable or all SSE? देखो ये AL शेड्यूल अगर कब आपको यूज होगा, जब आप ITR 2 का फाइलिंग कर रहे हो. आई शो यू दैट AL शेड्यूल अगेन. आप कब फाइल करोगे AL शेड्यूल? जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो. आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन नहीं करोगे? जब आप बिजनेस असेसी नहीं हो, आपको ITR 2 एप्लीकेबल है. तो ITR 2 अगर आपको एप्लीकेबल है, अगर आपको सैलरी इनकम है या अदर सोर्सेज से इनकम है और आपका इनकम 50 लाख से ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द बेसिक डिस्क्लोजर्स यू हैव टू पुट. दैट इज, आपके पास कोई मूवेबल एसेट्स है, कार है या कुछ है, यहाँ पे आप इनपुट डालिए. ज्वेलरी है या फाइनेंशियल एसेट्स है, वो सारे आपको यहाँ पे फिगर्स डालने पड़ेंगे. उसमें से लेस लाइबिलिटीज जो पर्टेनिंग टू एसेट है. अगर आपका एसेट लोन है और सामने आपका लाइबिलिटी लोन जा रहा है तो आप माइनस कर सकते हैं और नेट एसेट और लाइबिलिटी शो करना है. तो बेसिक लॉजिक इज, आप कब एसेट एंड लाइबिलिटी शो करोगे? जब यू आर नॉट सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 AA. अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है देन यू हैव टू गो फॉर ITR 3. अगर ITR 2 फाइल कर रहे हो 50 लाख के ऊपर है तो इतना बेसिक एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल आपको देना पड़ेगा. Okay, ma'am. Yes, thank you so much, ma'am. Even that was very well explained. So the next question, if someone has made a payment for claiming deduction from 1st April 20 to 31st July 20 but wants to claim it in AY 122, can he do it? Yeah, you can Should do I it. repeat? Yeah, no, I got your question. इनका क्वेश्चन ऐसा है कि चैप्टर 6A में इन्वेस्टमेंट किया है between 1st April 2020 to 31st July 2020. तो ये हम लोग लास्ट नहीं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 में क्लेम कर 21-22 में क्लेम कर सकते हैं क्या? यस, हम लोग कर सकते हैं. अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेड्यूल अभी फुल हो चुका है 1,50,000 का, तो आप लोग अभी क्लेम मत करिए, आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं. बट यू नीड टू स्पेसिफाई वो इन्वेस्टमेंट. अभी जैसे ATG का इन्वेस्टमेंट था, तो ATG का इन्वेस्टमेंट में कहीं वो पूछता नहीं है कौन से फाइनेंशियल ईयर का इन्वेस्टमेंट है. तो अगर कहीं पे स्पेसिफिकली वो लोग ने पूछा है कि कौन से ईयर का इन्वेस्टमेंट है और अगर आप फिर नेक्स्ट ईयर ले लोगे तो ये गलत होगा. आपके पास ऑप्शन है कि आप वो नेक्स्ट ईयर भी क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अपने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना चाहिए while investing. Got it, ma'am. Got it. Thank you so much, ma'am. So the next question coming up. Just a second. If the income goes above rupees 2 crore but below 5 crore and also cash receipts and payment are less than 5%, then are we supposed to apply presumptive taxation net profit limits of 6% and 8%? Can you pardon the question? Yeah, just a second.
if the income goes above rupees 2 crore, but it is below rupees 5 crore. Okay. And also cash receipts and payments are less than 5%, then are we supposed to apply presumptive taxation net profit limits of 6%? The basic limit for presumptive taxation is 2 crore rupees. अगर आप 2 crore के ऊपर चले गए हो तो आप तो presumptive opt कर ही नहीं सकते हो. First thing, आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा. ITR 3 भी फाइल करोगे अगर आपने 8% के ऊपर डाला है या तो 6% के ऊपर डाला है तो ऑब्वियसली आपको टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं होगा. ओके, तो 5 करोड़ वाज द लिमिट, बट आपको एक को एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा. 1 CR के ऊपर गया तो आपको कैश रिसीट कैश पेमेंट देखना ही पड़ेगा. अब यूजुअली प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग, अगर 5 करोड़ के हिसाब से अगर आप टर्नओवर कैलकुलेट करो 8% to 6%, तो यूजुअली इतना प्रॉफिट मार्जिन बहुत रेयर इंडस्ट्री में होता है, तो टैक्स ऑडिट ऐसे भी एप्लीकेबल हो ही जाएगा. बट 2 CR के ऊपर प्रिजम्पटिव आप जा ही नहीं सकते हो बिकॉज उसका स्लैब ही 2 CR का है. Any further question? I guess he got some network issues. Ma'am, I'll take it forward. Yeah. Okay. For AY 2021, what is the tax rate in case of MAT? MAT provisions, 15% tax rate. I think I forgot to inculcate that tax slab for MAT provisions. I'll share it with you separately. The changes in 1920 and 2021. I'll share it with you separately. Okay, ma'am. Sorry for the technical issue once again. Aishwarya, am I audible right now? Yeah, you're audible, Hardik. Ma'am, may I ask the next question? Yeah, sure. If the assessee is a resident and has taxable income during the year, is he required to give the foreign travel details for expenses above rupees 2 lakhs in those cases also? Yes, mandatorily they have to give. You need to ask for passport, valid passport copy of your clients, and need to check कोई foreign travel history है क्या. अगर foreign travel history है तो आपको वो check point जो FAQ return में दिया हुआ है, if foreign travel expenses more than 2 lakh, आपको yes mark करके further details mandatory देनी ही पड़ेगी. Okay. Thank you so much, ma'am. Ma'am, the next question is 5 crore limit for audit will be applicable also for previous year 1920? Previous year 1920, last year to previous year 1920, that is financial year 1920, no? Right. No, last year it was 1 crore. उसके बाद changes आया है. ये Finance Act 2019 में 5 crore का limit हुआ है. So it is applicable for this current assessment year, that is 2021. 2020. Yeah. Thank you so much, ma'am. Ma'am, the next question being person with salary income and losses to be carried forward from intraday trading has to go in ITR 3. Is it correct? Intraday trading, yes, it is classified as speculative business, so they have to go through ITR 3. Okay. But as I already said, ये doubt पहले भी आया, you need to check कि उसका profit और loss का total कितना जाता है, because that would be considered as turnover for speculative business. So they have to go through ITR 3. So ma'am, how do we check whether it is speculative or not? Either it is a derivative transaction, FNO, futures and options, or either it is intraday transaction. अब speculative transaction को define कैसे किया है? Without delivery अगर आपने कोई भी transaction किया है, normal delivery time for shares or securities is T+2, if you know. Right. तो अगर T+2 के पहले ही आपने उसको बेच दिया, आपके अकाउंट में डिलीवर हुआ ही नहीं है, that is known as intraday trading. तो अगर आप जब भी आपका डीमैट स्टेटमेंट और सपोर्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगवाओगे ब्रोकर से, आपको दिखेगा वहां पे स्पेसिफिकली कि इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ है, दैट इज विदाउट डिलीवरी. तो जो भी विदाउट डिलीवरी अगर हुआ है, दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव बिजनेस इन इनकम टैक्स. ओके, श्योर मैम, थैंक यू. The next question is just a second.
if an AOP having receipts less than 1 crore has done voluntarily audit, is it compulsory to furnish auditor details while filing return in Form 7? Voluntary audit, as if audit under section 44 AB का वो report filing कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो they have to give mandatory details of auditor and everything in ITR. Okay, okay, ma'am. Thank you so much. The next question, an assessee being individual, the requirement to check 5% will arise only after turnover exceeds 5 crore. Is it correct? Only after turnover exceeds 1 crore, you have to check. Okay. Either you can go for presumptive. If you are going for presumptive, then that's fine. अगर 1 करोड़ के ऊपर आपको चेक करना ही पड़ेगा कि 8% जा रहा है, 6% जा रहा है, कैश रिसीट है, तो you have to go for tax audit pertaining to that cash receipts and payment. Okay, thank you so much, ma'am. The next question is there any clause where reporting for GST audit is not applicable for the assessee? No, specifically this clause of detailed showing of GST reporting जो लास्ट ईयर के रिटर्न्स में भी था और ये साल के रिटर्न्स में भी है, इट इज एग्जेम्प्टेड फॉर 2 years, जहाँ पे यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दी परचेजेस, ऑल दी एक्सपेंसेस जहाँ से आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दी सेल या तो कोई इनडायरेक्ट इनकम जिसपे आप जीएसटी शो कर रहे हो. द ओनली मैंडेटरी थिंग इज कि आप लोग को जीएसटी का टर्नओवर यहाँ पे शो करना पड़ेगा ITR 3 में, ITR 4 में, दोनों जगह पे. अगर वहां से कुछ मिसमैच आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज, इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज फर्दर डिटेल्स फॉर जीएसटी इन दिस ईयर रिटर्न आल्सो. Okay, and this is applicable till for 2 years, last year and this year. Last year till and now. this year, yes. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. I hope the question was answered. And is there any limit to the deduction to be claimed in case of COVID-19 relief fund? No, there is no specific deduction. अगर आपका COVID-19 relief fund में आप invest कर रहे हो, you can take benefit under section 80G. तो आपको स्पेसिफिक कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. उसका एलिजिबिलिटी के 50% बेनिफिट है कि पूरा 100% बेनिफिट है, so you can go through that. Ma'am, but it is written, is there any limit? No, there is no specific. No, there is no specific limit. आपको 50% का लिमिट एक ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए कि आपने कौन से स्पेसिफिक फंड में डाला है. Okay. Thank you, ma'am. Ma'am, the next question is audit applicable if FNO turnover is less than 2 crore but profit is less than 6%? FNO turnover is less than 2 crore but profit is less than 6%. In case of FNO, it is considered as speculation business. वहाँ पे presumptive कुछ काम नहीं आएगा. आपको speculative business में irrespective of anything आपको वो ITR 3 में डालना पड़ेगा. अगर आपका 1 CR के ऊपर पहले जो टर्नओवर था वो 1 CR था, अभी 5 CR के ऊपर जाता है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, वरना ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा. और पर्टेनिंग टू स्पेक्युलेटिव बिजनेस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. और एक और थिंग, अगर स्पेक्युलेटिव लॉस है तो लॉस में तो मैंडेटरी ऑडिट होता ही है. तो टेक इट अ पॉइंट कि अगर स्पेक्युलेटिव लॉस है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको ऑडिट करना पड़ेगा उसका. Okay, I hope the person who asked the question has his query has been solved. And ma'am, the next question coming up, for above question, my professional income is less than rupees 30,000, still TDS was deducted, still ITR 1 or 2 is not applicable? No, ITR 1 or 2 is not applicable. In case of professional receipt, you have to go through ITR 4 or ITR 3. Okay. Ma'am, the next question is 26 AS, show income under 194J and 194H, whether assessee can opt
to furnish the details in income from other sources, or it is compulsory to go for section 44AD or 44AD? Basically 194J is for professional income, which comes Right. under the head income from business or profession. तो यूजुअली व्हाट पीपल डू कि वो अदर इनकम में शो करते हैं, 57 में उसका एक्सपेंस क्लेम करके आईटीआर फाइल कर देते हैं, विच इज बेसिकली नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज 194J इटसेल्फ सेज कि आपको कोई इनकम हुआ है जो प्रोफेशन से हुआ है, तो अगर आपको प्रोफेशन से इनकम हुआ है तो आपको 4 या 3 के थ्रू ही जाना पड़ेगा. दिस इज द करेक्ट रिपोर्टिंग. Right, ma'am. Thank you so much. The next question coming up, for calculation of turnover of intraday sales and purchase, both value or only loss and profit amount? Profit and loss irrespective of positive or negative आपको total लेना पड़ेगा उसको. Okay. Any specific doubts? पता चल रहा है कि बहुत सारे डाउट्स है रिगार्डिंग दिस स्पेक्यूलेशन बिजनेस दैट इज इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रांजैक्शन. अगर इसका भी कोई स्पेसिफिक डाउट हो अगर रिपीटेटिव, सो आई कैन शेयर यू सम डेटा फॉर दैट आल्सो. यू कैन शेयर इट विद देम. Sure, ma'am. Sure, ma'am. I guess we are done, ma'am. Are you up for more questions, or should we pack up? One or two questions you can take. It's okay. Ma'am, the next question is, can you please tell about grandfathering? Grandfathering provision जो last year से applicable था, that is assessment year 1920. उसके पहले तक long term capital gain was exempt. Only short term capital gain, that is 111A पे short term capital gain पे 15% आपका tax लगता था. But last year से आपको long term capital gain पे भी tax लगता है. कैसे लगेगा? आप लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सब डिटेल्स डालना पड़ेगा. तो पहले आपका कैसे होता था, जितना सेल प्राइस था और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो लेस होके आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड हो जाता था. नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, वो लोग ने एक बेस डेट दी है, दैट इज 31 जनवरी 2018. आपको चेक करना पड़ेगा 31 जनवरी 2018 में बीएससी एनएससी पे जो भी हाईएस्ट क्लोजिंग रेट है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. अब ये बीएससी और एनएससी पे हाईएस्ट क्लोजिंग रेट आपको कैसे पता चलेगा? आप साइट पे जाके वो स्पेसिफिक डेट्स का रेट ले सकते हो, या तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सॉफ्टवेयर है तो वहां से भी आप, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है मैं वहीं से डाउनलोड कर लेती हूँ कि क्या उसका डिटेल है. अब इसके लिए अगर आप रॉन्ग सिक्योरिटी का डाल दोगे फेयर मार्केट वैल्यू तो भी प्रॉब्लम होगा. उसके लिए ISIN कोड रहता है, so you can tally that security का ISIN code with Bombay Stock Exchange या तो National Stock Exchange website. अगर आपका cost, I'll show you one example. Suppose आपका sale value is 100 rupees, आपका cost of acquisition was 50 rupees, और अगर आपका fair market value is 60 rupees as on 31st January 2018. So they will consider whichever is higher, that is 60 रुपए आपका हायर है, तो इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा आपका प्रॉफिट कितना होगा 40 रुपीज. पहले क्या होता था 100 माइनस 50 रुपीज वॉज योर प्रॉफिट. तो अभी ऐसा होगा कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या तो वैल्यू एज ऑन 31st January 2018, whichever is higher shall be considered as your कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो आपका प्रॉफिट वैसे सेट होगा, और सारा जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टोटल आता है ईयर के एंड, मतलब पूरे ईयर के एंड में 1 लाख तक आपको एग्जेम्प्ट है. 1 लाख के ऊपर जितना भी उस पर 10% टैक्स लगेगा. तो दिस इज द ग्रैंडफादरिंग क्लॉज. Thank you so much, ma'am. I hope the person who asked the question, Mr. Sondhi, would have been more than satisfied with this answer. So, ma'am, I guess this is all for the day. So the questions were very well answered, and I hope the students got a very deep insight into the changes in income tax return for assessment year 2021. May I now proceed with the formal vote of thanks? Yes, if they have any specific doubts, more doubts which we cannot take it right now,
So either they can mail it to the WIRC email ID, which you can share with them, or they can connect me on my Facebook page or Twitter page. I usually put recent case laws and update regarding GST and income tax on these pages. So they can follow that page and they can message me personally on that page. So I'll solve that query. Sure, ma'am. Ma'am, we'll put this on our Vikasa page so that they can reach out to you whenever needed. So, so a very good afternoon to one and all again. Myself, Hardik Dara. I am. So now I would like, first of all, I would like to thank Vikasa and WIRC for organizing this webinar for the students, for the CA students, where they got a very deep insight into the changes in the tax return filing for assessment year 2021. Secondly, I would like to thank CA Dhara Gandhi ma'am for accepting to be the speaker and obliging us with this session. And now I would also like to thank all the Vikasa WIRC technical staff and support staff, along with the along with all the Vikasa members. And I would also be very thankful to Vikasa Chairman CA Hitesh Pomal sir and all the Vikasa office bearers for giving us this platform where we could gain knowledge from such a wonderful speaker, CA Dhara Gandhi ma'am. So for last but not the least, I would like to thank all the students for taking out time and giving us such a wonderful attendance and for their patient listening to, and we got an overwhelming response for this session. So thank you all the students. Also, one last thank you to CA Dhara Gandhi ma'am for sparing out their very precious time to speak on this topic for us, for the students. So thus, I would like to end this session by thanking you all, and I hope all the students will be connected to Vikasa in all our future events. Keep following us, be connected. So please, we would go ahead with our motto: connect, ignite, and prosper. Over to you, Aishwarya. Thank you so much, ma'am. Thank you all the students. Thank you, Hardik. Thank you, Taruna. And also a very warm thank you to Dhara Gandhi ma'am. It was an honor and privilege to have you here along with us during this pandemic, resulting into a lot of postponements and amendments into the way entire AY that has completely shifted, and the dates and the return filing methods, the exemptions, everything. And you being the guiding light to us into this scenario where we just as students doing our articleship for 1 or 2 years. So it is a very entire new phase, entire learning phase for us. And the PPT, the charts that you shared, the tables, had a very brief and the thorough overview of the entire thing that we have to understand, get through it. And probably this will be something that we will remember for our lifetime. Okay, that something like this had happened, and we learned through this too. So thank you so much, ma'am, for making time out of your busy schedule and being a guiding light to us. Thank you so much, ma'am. Also, I would want to take the opportunity to announce our next session, that is on 4th of September, 2 to 4 p.m. That is on Tally ERP 9 for effective GST compliance. So now we have understood how to file the returns and the changes in AY for the year AY 2021. So now we shall also have a brief look into the GST part. So we are having a session on Tally ERP 9 for effective GST compliance by CA Vandana Dodia ma'am. So hope to see you all, and it gives me immense pleasure to announce that we had an approximate reach of 325 students for today's session, and all the credit goes to you for having this effective and thorough brief of the entire concept and a very brief run through of the entire concept. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.